Hello students, good morning. Let us start today's lesson NCERT 10th standard. Today's chapter is respiration. Respiration, you can page number 102, 101. From there you can start looking that. Now what is the main purpose of respiration? Main purpose is to release energy from food. This is the main purpose. Our body need energy for different kind of life process. That energy we can obtain from food only. And how food get the energy? Because the green plant made the food, glucose, and it trapped the solar energy in the food. That solar energy we can obtain from plant through food, and that from food we have to release the energy through the process called respiration. And respiration has two parts. One is external part, means air to body, body to air. Okay, atmosphere to body and body to atmosphere. That is the external. Because to release energy from food, we need one essential gas, that is oxygen, and abundant oxygen. बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर. तो हमें एयर से ऑक्सीजन लेना है. सो एयर टू बॉडी एंड बॉडी टू एयर, ये दोनों का एक्सचेंज होना जरूरी है. दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंड अनदर इज इंटरनल. इंटरनल मीन सेलुलर, मैंने जो सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होके ये फूड से एनर्जी निकालते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेलुलर respiration. And another is external respiration. External respiration we can call inhalation and exhalation. That inhalation exhalation, it is in the ray diagram, it is explained here. It will come afterwards, because आपकी बुक में पहले internal respiration के बारे में बताया. So let us discuss the internal respiration. That is the breaking down of glucose by various pathways, because energy is stored in glucose. Okay, and in glucose, energy is stored by plant, and that energy is solar energy. Okay, now glucose follow different path to release energy for body use purpose. First of all, glucose has 6 carbons, C6H12O6. This 6 carbon glucose is broken into pyruvate या pyruvic acid. देखो CH3, C double bond O, COH. Up to H is acid, pyruvic acid. But if you don't take H plus, only up to O minus, then it is pyruvate. Here I am showing in the cell here, total cell. In cell, there is a organelle like this, looking like this. This is we call mitochondria. 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 But the final release of energy in glucose, from glucose, it is done in mitochondria. But before coming to mitochondria, something happened to glucose, and glucose is converted into pyruvate. That is done in cytoplasm. माने other than mitochondria जो सेल का पार्ट है, उसको cytoplasm कहते हैं. So in cytoplasm, this glucose is converted into pyruvate and some kind of little amount of energy. And pyruvate is 3 carbon. देखो 1, 2, 3. Pyruvate is 3 carbon molecule. Now, this pyruvate, glucose to pyruvate formation is a primary formation. It is common to all the pathways. There are 3 pathways shown here. First pathway in absence of oxygen, second pathway in lack of oxygen, and third pathway presence of oxygen. But for all the 3 pathways, the common path is glucose to pyruvate. Okay, try to remember. ये एक simple question भी आता है कभी कभी. Now, pyruvate follow 3 different pathways.
according to the situation. Suppose the situation is absence of oxygen. Now here yeast will carry out some reaction with pyruvate. That special name is fermentation or baking. Fermentation or baking takes place when yeast is such a fungi, it doesn't know how to use the oxygen. In absence of oxygen, is carry out the fermentation, fermentation, fermentation और बेकिंग रिएक्शन जो इडली बनाने में, ढोकला बनाने में और ब्रेड बनाने में जहाँ भी फर्मेंटेशन या बेकिंग होता है वहाँ ईस्ट यूज़ होता है और ईस्ट ये रिएक्शन कंप्लीट करता है। और इसमें क्या बनता है? इथानॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है और इसमें एनर्जी भी बहुत थोड़ा कम अमाउंट में। और दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक, ANAPEROBIC, एनारोबिक। एनएरोबिक, एरोबिक माने विथ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक। ओके, तो एनारोबिक और माने ईस्ट को मालूम ही नहीं है कि ऑक्सीजन यूज़ कैसे करना है, इसलिए अगर ऑक्सीजन दे भी दो फिर भी वो फर्मेंटेशन ही करेगा, एनारोबिक रिएक्शन ही करेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करना आता ही नहीं। क्लियर? सो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, इट इज़ द इन आवर बॉडी मसल में ये होता है, जहाँ हमारे बॉडी का कोई पार्ट, माना हम मूड आ गया तो हम बहुत बैडमिंटन खेलने लगा, तो हमारा हाथ बार बार ज़रूरत से ज़्यादा इननेचुरल यानी इन इरेगुलरली हमारा हाथ का बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो सडनली हाथ का जो मसल है उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन तब क्या होता है, ये पायरुवेट जो है इसका एक टाइप का ब्रेक डाउन होता है, जिसको कहते हैं, ब्रेक डाउन के कारण 3 मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड बनता है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, CH3 COH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पायरुविक एसिड में C डबल बॉन्ड O था, यहाँ C सिंगल बॉन्ड OH, बराबर। और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ एक H तो होगा, सिंपल कैलकुलेशन H होगा। ओके, नाउ तो ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी का कोई काम का नहीं है, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बॉडी मसल का यूज़ करें अननेचुरली, नेचुरली नहीं अननेचुरली करते हैं, ये यूज़ करें, तो वहाँ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, उस मसल के अंदर ही ये गैदर होने लगते हैं और धीरे धीरे मसल का मूवमेंट बंद कर देते हैं, इसको कहते हैं मसल क्रैम्पिंग। मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प माने मसल हार्ड बन जाता है, मूवमेंट बंद हो जाता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी या हार्ड बन जाता है। ओके, मसल हार्ड बन जाता है और बहुत पेनफुल हो जाता है ना, ये पेनिंग भी होता है। हम जब ऐसा बहुत यूज़ करते हैं, अपने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने मसल को बहुत ही अननेचुरल यूज़ किया तो वो मसल क्रैम्प हो गया, मैंने हार्ड हो गया और पेनफुल होने लगा। दैट मीन्स वहाँ लैक्टिक एसिड बहुत गैदर हो गया, धीरे धीरे वहाँ लैक्टिक एसिड निकालने में टाइम लगता है, विदिन 24 आवर्स लैक्टिक एसिड निकल जाता है और हमें मसल को रिलैक्स हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक माने विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन है। और थर्ड टाइप का है जहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाता है और वो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होके फुल एनर्जी निकलता है और इसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O और एनर्जी निकलता है। तो दिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये एक टाइप का क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, तो आपको ये डायग्राम लर्न करना है और इसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। सो देयर आर फर्स्ट स्टेप पायरुवेट बनता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है और उसका 3 रास्ता होता है। एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ईस्ट करते हैं, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। सेकेंड स्टेप लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये समटाइम्स हमारे बॉडी मसल में ही होता है, जिसके कारण एनर्जी थोड़ा बहुत निकलता है और लैक्टिक एसिड एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है,
जिसके कारण हमारा जो बॉडी पार्ट है वो क्रैम्प हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। और नॉर्मली हमारे बॉडी में, पूरा बॉडी में, हर एक सेल में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के कारण प्रेजेंस में ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके फुल कंप्लीट रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल और सफिशिएंट एनर्जी। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है कौन सा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन। एन निकाल दो, एरोबिक। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मली हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है और वी गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ये हो गया आपका इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नाउ